So in this question ABCD, यहाँ पे ये ABCD the quadrilateral is given here, and this is the smallest side is given AB, and CD is the largest side given. अब हमें इसमें प्रूव करना है angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. Now let us prove. So in the proof, now I am going to join AC. AC को मैंने join किया, right? In this triangle I join AC. So if you look at this, if this is the smallest side of the triangle, AB is the smallest side. It is out of four sides, this side is सबसे छोटी. ये सबसे छोटी साइड है, and this side CD is given सबसे बड़ी side in this quadrilateral, right? So now if you look at this in triangle ABC, अगर आप ABC triangle में देखेंगे, could you please tell me this the side AB is greater or BC is greater? So this is also the side of the quadrilateral, and this is the सबसे छोटी side. AB is the सबसे छोटी side of this quadrilateral. So अब AB बड़ा होगा या BC? BC बड़ा होगा. Yes. So BC is greater than AB because AB is the smallest side of this quadrilateral given in the question, right? So AB is given the smallest side. So AB is smallest side given in the quadrilateral. So if the side BC is greater, so we have studied that the angle opposite to BC is also the greatest angle. Yes, sir. And angle opposite to AB is C. So which angle is greatest here? So we can say that Sir, A. angle BAC is greater than angle CBA. So we can write like this. Right? Suppose this is 1. Now look at in this triangle. Look at in this triangle ACD. If you look at this triangle ACD, so this side is सबसे बड़ी. So what can you say about that, about this side? Which side is greater among these? AD is greater or DC is greater? Sir, DC. DC is greater क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली साइड है quadrilateral. It is given in the question, right? Now, which angle is opposite to this? DC के opposite में angle कौन सा है? Which angle is opposite to DC? A. A. And which angle is opposite to angle side AD? Sir, C. C. So can I write like this? एंगल DC के अपोजिट में एंगल है DA की बैक, और AD के अपोजिट में एंगल है ACD. कैन आई राइट लाइक दिस? DAC इज ग्रेटर देन ACD. जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके अपोजिट में एंगल बड़ा होता है. So let me write this equation 2. Now what I am going to do, that I am going to add, on adding equation 1 and 2. 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो देखो लेफ्ट साइड BAC, so this is 1. So लेफ्ट साइड से ऐड हो जाएगी और राइट साइड से ऐड हो जाएगी. So I can write like this: angle BAC प्लस एंगल DAC. So ये दोनों लेफ्ट वाले एंगल BAC दिस एंगल एंड DAC दिस एंगल मैंने ऐड कर लिए. नाउ दिस एंगल इज ग्रेटर देन CBA एंड ACD. So can I write like this? ऐसे लिख सकते हैं. So BAC बड़ा था, DAC बड़ा था, तो दोनों बड़े बड़े एंगल को ऐड किया तो दोनों छोटे छोटे एंगल को ऐड करके जो आएगा उससे बड़ा ही आएगा, राइट? Now what is anyone, could you, if you look at the figure, let me clear this figure, and I join this AC. So what is the sum of this? If I add this angle, BAC is this angle and DAC is this angle. What is this angle? इन दोनों का सम क्या एंगल होगा ये? Anyone? The sum of this and this. So 180. 180, no.
एनीवन एल्स? इन दोनों को ऐड करें तो क्या एंगल क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल? Sir, angle C. नो, एंगल ए, एंगल ए, Angle A. एंगल ए। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल ए मिल गया ना यहाँ पे। तो दिस इज एंगल ए इज ग्रेटर देन, एंड इनको देखो, इफ वी ऐड दिस CB एंड ACD, this is CB and this is ACD. If I add these two angle, what is that angle obtained? C. Yes, absolutely right. This is angle C. So what we need to prove in this question in the first part is, that is what we need to prove. Angle A is greater than angle C. Right? I hope this thing is clear to you all. Yes, sir. How I prove it. Now, the second part of this question is, we need to prove angle B is greater than angle D also. So let me write it here. Proof. This is the proof of the first part. And in it is, I have joined AC. AC को मैंने join किया था. Right? Now second part भी similarly हम लोग इसी तरह से prove कर सकते हैं second part को भी. Now let us prove the second part. Let me take this triangle on this side and let me prove the second part for this question. Okay, now this is the first part. Now let me prove the second part. Second part में proof of the second part is, we have to join. Now it is the same procedure. We need to join BD. BD को हमें join करना चाहिए. So now join this BD. Okay. So I have joined BD. So after joining BD, if I look at this in triangle, अगर मैं इस triangle में देखूं अब यहाँ पे, in triangle ABD, so which side is greater? Sir, BD. BD. ओके, BD सबसे बड़ी साइड लग रही है, लेकिन मैं इसकी साइड्स के बारे में बात कर रहा हूँ. AD में और AB में कौन बड़ा है? सर एडी, Sir, AD. Sir, AD. क्यों? क्योंकि दिस साइड इज गिवन, सबसे छोटी साइड गिवन है AB. ठीक है, सो AD बड़ा है. ठीक है, AD बड़ा है, तो AD के अपोजिट में एंगल, एनीवन कुड यू प्लीज टेल मी द एंगल अपोजिट टू AD? A. AD के अपोजिट में सी, C. सर सी, सी, look at this AD triangle के opposite. ABD only. Why you are going to C? We are looking at only this triangle ABD now. D के अपोजिट में ये एंगल नहीं दिखाई देता आपको. AB के अपोजिट में, उस ट्रायंगल के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है आपको. राइट? सो इसके अपोजिट में एंगल दिखाई देता है मुझे, एंगल ABD. बी, और यहाँ पे एंगल दिखाई देता है ADB, AB के अपोजिट में. ठीक है, सो एंगल भी ग्रेटर होगा, फर्स्ट थिंग. राइट? नाउ लुक एट दिस इन ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल BCD. BCD ट्रायंगल में देखिए, साइड DC इज ग्रेटर और BC इज ग्रेटर. DC. DC is greater. Why? Because it is given in the question. DC is the longest side. Now अब आप देखिए यहाँ पे, इसके अपोजिट में, D के अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है? दिस एंगल. और BC के अपोजिट में, इसके अपोजिट मतलब जस्ट सामने वाला. एंड यू हैव टू लुक एट इनसाइड द ट्रायंगल ओनली. ट्रायंगल के अंदर ही देखना है. सो कैन आई राइट लाइक दिस, DC के अपोजिट में CBD and BC के अपोजिट में एंगल DCDB. So which angle is greater? So this angle is greater, right? So let this is as second. Now on adding 1 and 2. So the same procedure in the first part that we have done. So we have to follow the same procedure. 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो इसकी लेफ्ट साइड है ABD, इसकी लेफ्ट साइड है CBD,
ग्रेटर देन, इसकी राइट साइड है ADB and this left side is CDB. Now anyone could you please tell me the sum? The sum of these two angles is equal to ABD and CBD. B. What? Sir, angle B. Yes, Angle B. absolutely right. Angle B. And the sum of these two angles? D. Yes, Angle D. angle D. So B is greater than D. Angle D. So this is what we need to prove in the question. So hence proved. I hope this question is clear to you all. यस सर सर फर्स्ट वाले पार्ट में सर हमने लाइन कहां से कहां तक बनाई थी A to C. First we join AC and in this we join BD. तो अगर हमें B और D को करना है prove, तो we have to join BD, and if we need to prove angle A is greater than C, then we have to join AC. Okay, now I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question number 5. In figure 7.51, PR is greater than PQ. Okay, PS bisect QPR. Okay, prove that PSR is greater than PSQ. So let me write the given data first. So given data is PR is greater than PQ, first thing. Second thing is PS bisect QPR. So where is QPR? QPR कहाँ पे है? यहाँ पे. तो PS ने इसको bisect किया. If suppose if this is X, then this is also X. So what does it mean? It means angle QPS is equal to angle RPS, right? Bisect का मतलब. Now what we need to prove? We need to prove PSR is greater than PSQ. कहाँ पे है PSR? PSR है हमारा, PSR ये एंगल है डबल जिसको मैंने मार्क किया, और PSQ कहाँ पे है? PSQ is सर पीएसआर सर लेफ्ट में है गलत कर दिया मैंने. Yes, PSR is not this. PSR is this. तो जो मैंने डबल डबल मार्क किया है, right? So we need to prove this angle equal to this. ये हमें this angle is greater. So ये PSR है greater है और ये smaller है इससे. So that thing we need to prove. Excuse me, sir. I have a doubt. सर बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, तो फिर ये एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा कैसे हो सकता है? Okay. बाइसेक्ट ऊपर वाला एंगल किया है, QPR को बाइसेक्ट किया है, इसको बाइसेक्ट किया है, इसको बड़ा छोटा प्रूव करना है. ये बाइसेक्ट, नीचे वाला एंगल बाइसेक्ट नहीं हुआ है बेटा. दिस इज नॉट द बाइसेक्टर. दिस एंगल्स बाइसेक्ट नहीं हुए, स्मॉल और जी. ऊपर वाला एंगल बाइसेक्ट हुआ है, एंगल QPR, राइट. PS ने एंगल QPR Okay, को sir. बाइसेक्ट किया, तो ये तो इक्वल हो गए. नीचे वाले इक्वल हो ना हो वो उसमें गिवन नहीं है, तो नीचे वाले को ग्रेटर प्रूव करना है, PSR को ग्रेटर प्रूव करना है PSQ से, राइट. ओके सर. नाउ लुक एट द प्रूफ. प्रूफ देखते हैं इसका. क्या कर सकते हैं? एनीवन? तो सबसे पहले आप गिवन डाटा देखिए. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इफ PR, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल को आप देखें, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको क्या क्या है. इसको मैं रब कर देता हूं. अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR, if you look at this in this triangle PQR, and it is given if PR is greater than PQ. अगर PR PQ से greater है, let me write it here.
if PR is greater than PQ, right? So what is the angle opposite to PR? It's Q in the bigger triangle. And what is the angle opposite to PQ? It's R. So which angle is greater? Angle Q is greater or angle R is greater? Sir, angle R. Sir, angle Q. Angle R, Angle angle R. Q, angle R, Angle Q. angle Q. So which side? ये बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे? ये बड़ी है। PR. तो जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल ही तो बड़ा होगा, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? Q. Q. ये छोटी साइड है तो इसके अपोजिट में एंगल छोटा होगा। छोटी छोटा, बड़ी बड़ा, बड़ी बड़ा। सो बड़ी साइड के अपोजिट में एंगल बड़ा, छोटी साइड के अपोजिट में एंगल छोटा। सो एंगल Q इज बड़ा देन एंगल R. सो एंगल Q इज ग्रेटर देन R, राइट? इससे क्या फायदा होगा सर? Yes, sir. ये तो नहीं करना हमें तो कुछ और करना है। इससे देखो फायदा क्या होगा। बिना फायदे के तो मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, आपको पता ही है। कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इससे। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, हमें इन दोनों एंगल्स का रिलेशन निकालना है, इसका और इसका। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। एंगल Q R से बड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंगल Q को फाइंड करता हूं। एंगल Q है कौन? एंड व्हाट इज एंगल R? नाउ अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल PQS ट्रायंगल में क्या मैं x को और एंगल Q को और एंगल PSQ को 180 ले सकता हूं? क्यों? What is the reason? Sir, because sum of Yes, angle sum property. angle sum property, and because the sum of all the three angle of a triangle is 180 degree, so it is angle sum property लिख सकते हैं, right? अब इसी तरह से ट्रायंगल PSR में मुझे बता सकते हैं कौन कौन होगा? X होगा, एंगल आर R होगा, एंड एंगल PSR. Angle Angle. S. PS, Angle piece. PSR, Sir. ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। अब ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं एंगल Q फाइंड कर लूंगा यहाँ से। तो Q किसके इक्वल आएगा? 180 माइनस x माइनस PSQ, ठीक है। और यहां से एंगल R फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि R और P की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे PSR एंड PSQ की जरूरत है। तो 180 माइनस x ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई शिफ्ट दिस x ऑन दिस साइड तो इट बिकम माइनस, if I shift this PSR on this side it become minus PSR. Is this thing clear to you up to now? Any doubt? अब तक समझ में आया आपको? यस Yes, sir. ये मैंने Q क्यों निकाला है यहाँ पे और R क्यों निकाला है, कहाँ पे रखने वाला हूँ इसको मैं, आपको समझ में आ रहा है? इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। इनको मैं क्या करूंगा, इनको यहां से उठाऊंगा और इसको यहाँ पे रखूंगा Q की जगह पे, और इसको यहां से उठाऊंगा। आई एम हैविंग द सुपर पावर, ऐसे हैंड बड़े कर लेता हूँ। इन दोनों को उठाऊंगा और वहां पे रख दूंगा, उसमें रख दो उठा के। पुट एंगल Q एंड R, इसको मान लेता हूं सपोज 1 2, तो इसको मान लिया, इसको मान लिया 3। पुट एंगल Q एंड R इन 3। सो व्हाट विल हैपन, Q की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं? 180 माइनस x माइनस PSQ लिख सकता हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात का, क्योंकि Q इसके इक्वल है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया और
आर की जगह पे मैं लिख सकता हूं एट द प्लेस ऑफ आर आई कैन राइट 180 माइनस एक्स माइनस पी एस आर। अब क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं, इनको इधर उधर कर देते हैं, इस 180 को इधर कर देते हैं। तो पहले ये 180 लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये 180 है, एक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस 180 को इधर कर दिया मैंने, तो इधर उधर कर देंगे, ये दोनों लिख लिए। 180 को इधर किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 180। इस एक्स को इधर इधर उधर किया तो प्लस एक्स। इस पी एस आर को भी इधर कर दिया, प्लस पी एस आर। इधर कौन बचा, इधर, इधर तो कोई भी नहीं बचा, तो इसको पी एस क्यू को इधर भेज देते हैं। तो इधर आके माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस पी एस क्यू, ठीक है। अब बहुत धीरे धीरे आपको इनको काटना है, 180 को इससे, एक्स को इससे। इसके बाद पी एस आर हमारा आएगा एंगल पी एस क्यू से बड़ा, राइट। सो दैट पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। नाउ अच्छा, आदित्य वशिष्ठ जी भी आ गए हैं। इससे आगे कैसे करेंगे इसको, एंजली का आप बता सकते हैं, इससे आगे कैसे करेंगे, यस और नो। जिनको अभी तक समझ में नहीं आया कि इससे आगे कैसे करेंगे, वो नो लिख दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं सबसे पूछने वाला हूँ। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। पॉज हो गई है, नो। अच्छा, दिवांश भी नहीं बता रहे हैं, नो। धनसिता आप बताएंगे इससे आगे कैसे करेंगे, यश कपूर भी नहीं बता पा रहे हैं। गौरव भाग्य, आप रुकिए, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। नो लिख दीजिए अगर जिसको नहीं बताना है, जिसको बताना है वो उनसे पूछूंगा अभी मैं। अच्छा, नो लिख देंगे तो मैं पूछूंगा नहीं ना फिर आपसे। तो सक्षम ने भी नो लिख दिया, आदित्य वशिष्ठ ने भी नो लिख दिया है, ओके। मयंक ने भी नो लिख दिया है, शांतनु, वैष्णवी वत्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपको बोल के बताना है, कौन बताना चाहेगा इसको। सर मैं बताऊं? रुको 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 रुको, कौन बताना चाह रहे हैं, दिव्यांशु बताना चाह रहे हैं, ओके। एनीवन एल्स, जिनको पता है इससे आगे कैसे करेंगे, एनीवन एल्स। सर दिव्यांग सर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा भी बताना चाह रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे आगे तो बहुत आसान है। प्रेरणा, अच्छा प्रेरणा बताना चाह रहे हैं। एनीवन एल्स, और कोई बताना चाहेंगे, माहिया बताना चाहेंगे, ओके। सो बताओ प्रेरणा, आप बताओ पहले। सर क्वेश्चन में तो ये प्रूव करना था एंगल पी एस आर बड़ा है एंगल पी एस क्यू से, और सर वो तो आगे हमने सॉल्व कर ही दिया। आप रुको, माहिया आप बताओ। माहिया आप बताइए, माहिया बताएंगे। सर हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत आ रही है हम लोगों के पास, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आपकी, बताइए। ओके सर। सर क्या हम इसे वो एंगल में से ढूंढ के बताएंगे क्या? अच्छा, अभी बताता हूँ कैसे बताएंगे। अच्छा, प्रेरणा बिल्कुल सही बता रही है, इसको आगे कैसे करना है। दिव्यांशु आप बताएंगे। सर यही सोच कर आया था, ये आ गया। कितना सोच रहे हैं बच्चे, इसमें देख तो लो करना क्या है। यस, सर क्या हमें इसकी डिजिट्स भी निकालनी होगी इसे करने के बाद? नहीं, इसमें देखो, इसमें इससे आगे क्यों करेंगे, इसको क्या प्रूव करना है आपको। आप लोगों को यही नहीं पता लग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, ये तो प्रूव करना है। इससे आगे क्यों करेंगे इसको भाई, क्यों इतना सोच रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, सबको पता है। इससे आगे कुछ पीएसआर को ग्रेटर देन पीएसक्यू करना था, जो प्रेरणा बता रही है। ग्रेटर देन पीएसक्यू हो गया है, क्यों करोगे इससे आगे, क्वेश्चन तो पूरा हो गया है। इससे आगे करने की जरूरत क्या है इसको। इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड।
इतनी सी 2 वर्ड बताने थे। इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे सर यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड। कितने बच्चे नो नो लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे भी करेंगे क्या इसमें, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है हमें, ठीक है। ऐसा गेम मैं कभी भी खेल सकता हूँ, तो बी केयरफुल। सो इफ यू so this is the thing which we have to prove in this question, right? Now let's move to the next question. Look at this question number, look at this question number 6. What happened? The time. Who asked you? Did I ask to you? I also know that. I am also having the time machine with me. Look at this question 6. So that all the line segment drawn from a given point note on it, the perpendicular line segment is the shortest distance. So in this question, if you look at this, this is the line, and if there is any point, line segment drawn from a given point. So if the point is here, point P, not on this line, एक line के ऊपर नहीं है. So the distance between, अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो इसमें जो distance होंगी, distance between दिस लाइन एंड दिस पॉइंट, तो बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, राइट, इस साइड में भी हो सकती है। सपोज इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन इज, वी नीड टू प्रूव AD is the AP, AP is the shortest distance. So that is what we need to prove, AP is the shortest distance, right? So if you look at this, how to prove it, let me tell you the proof of this, very easy proof. So if you look at this in this triangle, what is this angle? Perpendicular distance, so this angle is 90, right? So this, the side opposite to, so this angle is, if you look at in any triangle, if you look at this in triangle, if you look at this in triangle BAP, so which angle is greater? So angle A is greater than Angle B. एंगल जो P पे बन रहा है उससे भी बड़ा होगा, और जो एंगल A इससे भी बड़ा होगा, किससे, जो एंगल A B P पे बन रहा है। तो इफ दिस थिंग हैपन, सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट वी कंक्लूड दैट द साइड अपोजिट टू एंगल A इज ऑलवेज ग्रेटर। सो जो साइड PC होगी वो किससे बड़ी होगी, B के अपोजिट में जो साइड है। तो B के अपोजिट में साइड कौन सी है, PA। इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल? So because of this angle 90 degree, this side is always greater. Similarly in each and every triangle. Similarly if you look to talk about PC, तो PC भी बड़ी होगी PA से। If you talk about PD, PD भी बड़ी होगी PA से। So from this we can conclude that perpendicular distance is the shortest distance. जो perpendicular distance है PA. So PA is the shortest distance. So perpendicular distance is the shortest distance. I hope this question is clear to you. Perpendicular distance is the shortest distance. ये हमने प्रूव किया है, जो एंगल के अपोजिट में साइड बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एंगल परपेंडिकुलर का एंगल 90 होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है, तो इसके जो अपोजिट में साइड होगी वो हमेशा बड़ी होगी, राइट? So like this you can solve it. I hope this question is clear to you. So this is all about this exercise, and this is all about this chapter number 7. So that's all for today. Thank you all for joining. Rest of the thing we will discuss in the next. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day. Have a great day ahead. Welcome.